Hello students, today in this lecture we are going to discuss the applications of Biot-Savart law. Okay students, and the applications of Biot-Savart law. In the applications of Biot-Savart law, this Biot-Savart law is basically a tool to calculate the magnetic field at any point due to any type of current distribution. Got it? तो बेटा Biot-Savart law basic होगा to calculate the magnetic field at a point due to any current carrying conductor or any current carrying conducting system. ये सिंपल सी बात समझ आ? तो फ्रेंड्स, in today's lecture we are going to calculate the magnetic field at a point due to the different conducting systems. पहले हम करेंगे magnetic field निकालेंगे at a point due to the state conductor. Got it friends? समझ आ गई बात? तो सबसे पहले हेडिंग डालें magnetic field due to the long state conductor. सबसे पहले हेडिंग डालें magnetic field due to the long state conductor. फिर उसके बाद फ्रेंड्स आप ये वाला फिगर कॉपी करें, आप ये वाला फिगर कॉपी करें, ये वाला फिगर कॉपी करिए। फिगर में लीनियर कंडक्टर AB which carries the current I, and this current I it flows from the end A towards the end B. This P is the observation point, okay, and since this vector dl is the current length element at the point O on the conductor. Clear? Now since we are joining the observation point P with the position of the current length element, okay, and let us suppose say that this distance is equal to R. Now since the angle between this vector R, that is OP vector, and this vector dl is theta. Got it? सिर्फ ये फिगर कॉपी करिए। यस सर, अब बेटा कंसिडरेशंस लिखें, मैं लिखवा रहा हूं, आप नोट करें। कंसिडर द स्टेट कंडक्टर AB which carries the current I from the end A towards the end B, full stop. Let vector dl be the current length element at the point O on the conductor, full stop. Let P be the observation point and OP equals to small r. ऐसे लिखना है, OP equals to small r, full stop. Let vector dB ऐसे लिखना है, D vector B. Let vector dB be the small magnetic field at the point P due to the current flowing through the current length element, full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखिए अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट्स लॉ। अब बोर्ड पर देखें, अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट्स लॉ, सिंस अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट्स लॉ लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखें द मैग्नीट्यूड of the small magnetic field vector dB at the point P is given by dB is equals to say K I dl sin theta divided by R square. Got it friends? It is the magnitude of the small magnetic field which is produced at this point say P. Let us call this as the equation number first. बात समझ आ गई? अब क्या करना है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब बेटा फिगर के अंदर बाकी का काम करेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, और यही आपका लॉगरिथम भी होगा जब आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू द स्टेट कंडक्टर न्यूमेरिकल सेक्शंस में। समझ आ गई बात? क्लियर? नाउ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P वी आर गोइंग टू ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन द स्टेट कंडक्टर।
Now let us suppose say that it is say the perpendicular which is dropped from the point P, the observation point, on the length of the conductor, that is on the conductor. Let us call this distance, the perpendicular distance, as a small a. अब ध्यान से देखिए, this angle is theta. We are going to call this angle as phi. ये सिंपल सी बात समझ आ गई. And further we are going to suppose say this length OC, the length OC, it is equals to say L. The length OC is equals to say L. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट लाइन में वर्ड्स में लिखें, ड्रॉप द परपेंडिकुलर from the point P on the length of the conductor. Drop perpendicular PC लिख ले, PC ऐड कर दे, PC ऐड कर ले. Drop perpendicular PC from the observation point P on the length of the conductor. Full stop. Let PC equals to small a. Let ऐसे लिखे, PC equals to small a. हो गया? And angle OPC is equals to phi. And angle OPC equals to phi. Full stop. Let OC equals to L. Let OC equals to L, small l. OC equals to small l. बात समझ आ गई? क्लियर? अब ध्यान से मेरी बातें सुने. अब बेटा यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. द राइट एंगल ट्रायंगल इज OCP. ठीक है? अब देखिए, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, I कांस्टेंट करंट है जो फ्लो कर रहा है. हम DL का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम sin थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और स्मॉल r का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. समझ आ गई ये बात? नाउ इन द राइट ट्रायंगल OCP इन द राइट एंगल ट्रायंगल OCP दिखाई दे रहा है. क्लियर? अब ध्यान से देखिए बेटा, PC परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 हो गया. ये वाला एंगल थीटा था और ये वाला एंगल फाइ था. सो दिस थीटा प्लस फाइ इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. यस और नो? थीटा प्लस फाइ का वैल्यू हो गया 90 डिग्री. तो सिंस दिस थीटा इज रिटन एज 90 माइनस फाइ. समझ आ गई ये बात? थीटा इज रिटन एज 90 माइनस फाइ. तो सिंस साइन थीटा का वैल्यू हो गया, इट इज साइन 90 माइनस फाइ. पल्ले पड़ गई बात? अब साइन 90 माइनस फाइ कितना होता है? सो द साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ फाइ. पहली बात यहां तक समझ आ गई? कॉपी करते जाएं साथ साथ, क्योंकि काम थोड़ा लंबा है, मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा, तो जल्दी से कॉपी करिए. डन? अब ध्यान से देखें, इसी ट्रायंगल के अंदर अब हमें क्या करना है? अब हम r का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. Now friends, cos of phi is written as base over hypotenuse. It is a divided by r. This implies that this r is written as a divided by cos of phi.
This implies that this r is written as a secant phi. This further implies that this r square is written as a square secant square phi. बात समझ आ गई? तो बेटा हमें चाहिए था r स्क्वायर का वैल्यू, r स्क्वायर का वैल्यू मिल गया हमें phi की टर्म्स में. पल्ले पड़ी बात? ओके, कॉपी करते जाए. Also, in the same triangle, so अब L का वैल्यू लेंगे, बात करेंगे tan of phi की. tan phi is perpendicular by base L by A. तो L का वैल्यू आ गया A tan phi. समझ आ गई बात? बेटा डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू phi. तो यहां पे आ गया dl by d phi. इट इज रिटन एज, पहले a को, a तो कांस्टेंट है, a एज इट इज, tan phi को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा secant phi. क्लियर? पहले पढ़ गई बात? तो स्टूडेंट्स दिस dl इज रिटन एज a secant phi. गॉट इट? कॉपी कर ले. तो स्टूडेंट्स हमें sin थीटा का वैल्यू मिल गया, हमें dl का वैल्यू मिल गया, हमें r स्क्वायर का वैल्यू मिल गया. कॉपी करिए. बात समझ आ गई? अब बेटा नेक्स्ट लाइन में एक स्टेटमेंट लिखें. यूजिंग द कैलकुलेशन अबव द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रीरिटन एज. अब इक्वेशन फर्स्ट को रीराइट करेंगे, मतलब ये जो तीन वैल्यूज हमने ऑब्टेन किए इन तीनों को इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे. तो इक्वेशन फर्स्ट हुआ करता था dv was equals to से k I, पहले dl की बात करें, dl था a secant phi, a secant phi. समझ आ गई बात? फिर स्टूडेंट्स ये तो dl का वैल्यू हो गया, sin थीटा का वैल्यू था cos of phi डिवाइडेड बाय r स्क्वायर का वैल्यू, r स्क्वायर का वैल्यू है a स्क्वायर secant स्क्वायर phi. बात समझ आ गई भाई? वो इतना काम क्लियर हो गया? बेटा भाई कैलकुलेशन में एरर हो गई यार. सर से कैलकुलेशन में एरर होगी, सॉरी. tan phi का जो डिफरेंशियल है इट इज secant स्क्वायर phi. tan phi का जो डिफरेंशियल है इट इज secant स्क्वायर phi. इसे मॉडिफाई कर ले, सॉरी. तो स्टूडेंट्स ये जो dl का वैल्यू आ गया इट इज a secant स्क्वायर phi. इट इज a secant स्क्वायर phi. गॉट इट? तो स्टूडेंट्स यहां पर secant स्क्वायर phi से secant स्क्वायर phi कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया. Now since we are left with this dB is written as a k multiplied with I divided by a multiplied with cos phi. और एक और चीज रह गई, सॉरी आज बहुत कुछ रह रहा है. ये d phi इधर जाएगा इंटू डी फाई. बेटा डी फाई भी ऐड कर ले इसमें. dl के वैल्यू में secant स्क्वायर phi डी फाई मिस हो गया, सॉरी, इंटू डी फाई. सो dB is written as k I by a into cos phi into say d phi.
बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो गया इन टर्म्स ऑफ फाई. स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कॉल दिस इक्वेशन एज द इक्वेशन नंबर सेकंड. इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे. पल्ले पड़ गई बात? यहां तक जल्दी से कॉपी कर लें. यहां तक जल्दी से कॉपी करिए. यस डन. अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए. अब क्या करेंगे? अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करना है. टू ऑब्टेन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट कंडक्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे? अब बेटा बी पॉइंट से पहले पी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. बी पॉइंट से पी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये जो लेंथ डी एल था, जो लेंथ एलिमेंट था डीएल वेक्टर, इसको आप पूरे कंडक्टर पर कहीं पर भी इमेजिन कर सकते थे, कहीं पर भी कंसीडर कर सकते थे. तो स्टूडेंट्स जब आप लेंथ एलिमेंट को पूरे कंडक्टर पर कहीं पर भी मार्क करेंगे तो ये फाई का वैल्यू चेंज होगा. ठीक है. अब क्योंकि हमारे पास में स्टेट कंडक्टर ए बी है तो जो लेंथ एलिमेंट मार्क किया जा सकता है इट इज ऑन द कंडक्टर फ्रॉम ए टू द पॉइंट बी, मतलब फ्रॉम द एंड ए टू द एंड बी. समझ आ गई ये बात? तो एंड ए से पी पॉइंट को ज्वाइन कर लें. कर लिया? अब ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इस एंगल को तो हमने बोल दिया फाई 1 और स्टूडेंट्स इस एंगल को हमने बोल दिया से फाई 2. अब ध्यान से देखिए बेटा, दोनों एंगल्स ऑपोजिट सेंस में हमने मार्क किए हैं. दोनों एंगल्स हमने ऑपोजिट सेंस में मार्क किए हैं. बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? ओके. तो अब स्टूडेंट्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, और जो लिमिट्स होंगी वो फाई की लिमिट्स होंगी, मतलब एंगल की लिमिट्स होंगी. क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखें, टू कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टू कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द स्टेट कंडक्टर AB, the equation second is integrated within the proper limits. तो सिर्फ जब dv को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा b. b is the total magnetic field. क्लियर हो गई बात? ओके. So this b is written as integral, इंटीग्रेट करें इस एक्सप्रेशन को. It is say k I divided by a multiplied with cos phi multiplied with d phi. Limits ध्यान से देखिए, दोनों एंगल्स ऑपोजिट सेंस में phi 1 और phi 2. ठीक है. तो दोनों का सेंस सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस phi 2 से इंटीग्रेट करेंगे. तो लोअर लिमिट माइनस phi 2 और अपर लिमिट phi 1. पल्ले पड़ गई बात? अब जब माइनस phi 2 कंसीडर करेंगे तो बेटा एंगल का सेंस ऑपोजिट हो जाएगा. जब एंगल का सेंस ऑपोजिट करेंगे तो माइनस phi 2 हो जाएगा. तो जो लिमिट्स आ गई वो माइनस phi 2 से phi 1 हो जाएगी. सो दिस b इज रिटन एज k कांस्टेंट था, i कांस्टेंट था, a कांस्टेंट है. इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ऑफ phi 2 टू phi 1 cos ऑफ phi इनटू d phi. गॉट इट स्टूडेंट्स? पहले यहां तक जल्दी से कॉपी कर लें. पहले यहां तक जल्दी से कॉपी कर लें. कॉपी करिए. यस सर, कॉपी हो गया. अब कॉपी करने के बाद सर cos phi को इंटीग्रेट कर लेते हैं.
So since this B is written as say K I divided by A, बेटा cos phi को इंटीग्रेट कर रहे हैं, cos phi का इंटीग्रल होता है sin of phi, और जो लिमिट्स आ गई they are from minus of phi 2 to phi 1. समझ आ गई बात? वो इतना काम क्लियर हो गया. अब लिमिट्स को प्लेस कर देंगे. So this B is written as say K I by A sin of phi 1 minus sin of minus phi 2. ठीक है. अब सर sin of minus phi 2 और बाहर है minus 1 minus, तो we can say that this B is written as say K into say I divided by A into it as say sin of phi 1 plus say sin of phi 2. So since it is the required expression, ये required expression है, it is the total magnetic field at the observation point P due to the state conductor AB. फटाफट जल्दी से कॉपी करिए, फिर कुछ केसेस करते हैं. यस सर, अब मेरी बातें ध्यान से सुने. देखिए, जब लास्ट क्लास में हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ किया था तो दो केस तो तब कर लिए थे. पहला केस द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज 0. दूसरा केस किया था द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सेस ऑफ द कंडक्टर, अगेन द मैग्नेटिक फील्ड वाज 0. ठीक है, दो बातें हो गई थी. तो अभी ये तीसरी बात है. क्लियर? ये तीसरी बात है. कोई भी स्टेट कंडक्टर है जिसका लेंथ फाइनाइट है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है? इस एक्सप्रेशन को यूज करके निकालना है. तीन बातें टोटल हो गई अभी तक. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, अगर कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है? ठीक है, देखिए. Cases, case first, infinitely long straight conductor. Infinitely long straight conductor. Clear? अब ध्यान से देखिए. Let us suppose say it is the straight conductor which is infinitely long. तो यहां पर स्टूडेंट्स ये माइनस इंफिनिटी कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर प्लस इंफिनिटी कंसीडर कर लेते हैं, and I is the current which is flowing through the conductor. Clear? Let us suppose that this point P was the observation point. तो अब बायोट-सावर्ट लॉ यूज नहीं करेंगे, हमने जो रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज डालेंगे, उसको फिट करेंगे. तो सिर्फ P पॉइंट से हमने कंडक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था. द परपेंडिकुलर वाज ए. तो सिंस लास्ट में हमने क्या किया था, हमने एंड्स ऑफ द कंडक्टर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन किया था. क्लियर? तो अब ऐसा करते हैं, अब की ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एंड्स ऑफ द कंडक्टर को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं. अब देखिए, ध्यान से देखिए. कंडक्टर का ऊपर वाला एंड तो इंफिनिटी पर है. अगर P पॉइंट से आप उसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखिए, समझिए यहां पर समझिए. लेट अस सपोज से ये पॉइंट P है, लेंथ हुआ करती थी फाइनाइट, क्लियर? फाइनाइट लेंथ थी. तो देखिए, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहां से हमने इसको ज्वाइन किया, इस वाले एंगल को हमने फाई बोला. अब इमेजिन करिए कि बेटा लेंथ बढ़ती जा रही है, तो ये एंड बी कहीं ऊपर शिफ्ट होता जाएगा. जब आप ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेस कुछ ऐसी स्टोरी आएगी. बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब ये हो गया कि बेटा जैसे जैसे ये एंड ऊपर मूव करता जाएगा फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यार ये जो एंगल है, ये एंगल बढ़ता जाएगा. क्लियर हो गई बात? ओके. अब स्टूडेंट्स, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइंस हमेशा इन्फिनिटी में मीट करती हैं. अब अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बेटा कंडक्टर का एंड जो इन्फिनिटी पे है, अगर उसको हम ज्वाइन करेंगे तो स्टूडेंट्स जो स्ट्रेट लाइन होगा दैट विल बी पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ये सिंपल सी बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? तो स्टूडेंट्स, P पॉइंट से जब बेटा इस वाले एंड को जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, सॉरी जो इन्फिनिटी पे है, जब उसे ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ जो स्ट्रेट लाइन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. क्लियर? बिल्कुल ठीक इसी अप्रोच से जब बेटा नीचे वाला एंड जो इन्फिनिटी पे है P से जब उसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ वी विल ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन. बात समझ आ गई?
अब ध्यान से देखिए, तो बेटा ये वाला जो एंगल है φ1, हमने इस वाले एंगल को φ1 मार्क किया था, तो ये φ1 कितना हो जाएगा, दिस φ1 will be 90 डिग्रीज। हमने इस वाले एंगल को φ2 मार्क किया था, ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्रीज। बात समझ आ गई? तो इनफाइनाइटली लॉन्ग के केस में φ1 और φ2 कितना हो जाएगा, φ1 और φ2 90 डिग्रीज हो जाएगा। पल्ले पड़ गई बात? अब बेटा ये φ1 और φ2 की वैल्यूज हम रिजल्ट में प्लेस करेंगे जो अभी हमने ऑब्टेन किया। Now says, using this B is equals to say K I by A sin φ1 plus say sin φ2, तो φ1 it is equals to say φ2 is equals to say 90 degrees। तो ये वैल्यूज यहां पे प्लेस करते हैं। So since this B is written as say Ki by A, it is sin 90 plus sin 90। sin 90 1 होता है, तो since this B is written as say K into say I divided by A, 1 plus say 1, sin 90 1 होता है। तो B को क्या लिखेंगे यहाँ, B is written as twice of say K into say I divided by small k। तो since ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड मिला एट द पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ K इनटू I डिवाइडेड बाय A। सिंपल, समझ आ गई बात? जल्दी से कॉपी करिए। यस, सो इट्स डन। तो ये पहला केस। अब सेकंड केस करेंगे। सेकंड केस करेंगे, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। आधा इनफाइनाइटली लॉन्ग, आधा इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, देखिए देखिए, सिंस ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर था, तो इसका अगर आप आधा करते हैं, सेमी का मतलब आधा, तो एक काम करें, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको गायब कर देंगे। तो ये नीचे वाला पोर्शन हटा दिया। जब आपने नीचे वाला पोर्शन हटा दिया तो बेटा इसका एक एंड तो नोन है, यस और नो। तो ये जो नोन एंड है, लेट अस कॉल दिस एंड एज ए। तो सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वर्ड का मतलब समझ आया बेटा? आधा इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब एक एंड मालूम है और दूसरा एंड इंफिनिटी पे है। क्लियर हो गई बात? मतलब that is one end is defined and other end is at infinity। पल्ले पड़ गई बात? तो स्टूडेंट्स जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इस डिफाइंड एंड के बिल्कुल सामने है। क्लियर हो गई बात? ओके। अब स्टूडेंट्स P पॉइंट से आपने ज्वाइन किया तो ये जो φ2 पहले 90 हुआ करता था, ये φ2 अब कितना हो जाएगा, φ2 खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स φ2 कितना हो जाएगा, φ2 विल बी 0, φ2 विल बी 0। अब पॉइंट P से आपने कंडक्टर के एंड को ज्वाइन करना है जो इंफिनिटी पे है, तो जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे दैट विल बी पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। समझ आ गई बात? सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा बार बार, तो ध्यान से देखना। तो सिंस फिर से यूजिंग से B इज इक्वल्स टू से K I बाय A, कॉपी कर ले फिगर। नाउ वी आर यूजिंग B इज इक्वल्स टू से K I बाय A साइन ऑफ φ1 plus sine of φ2. This φ1 it is equals to 90 degrees and this φ2 is equals to 0 degrees. φ1 equals to 90 degrees and φ2 is equals to 0 degrees. So since this B is written as say K into say I divided by A, sine of 90 plus sine of 0. Sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है।
So we are left with this. B is written as say K into say I divided by A, और यहां पर ये कैलकुलेशन 1 दे, तो B is KI by A. कॉपी करें, डन. अब बेटा न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करते हैं. न्यूमेरिकल सेक्शन की बात करते हैं तो मैं आपको एक सीधा लॉगरिथम दे रहा हूं, स्टेप वाइज अप्रोच दे रहा हूं. वो स्टेप वाइज अप्रोच कॉपी करें, और जब भी कोई भी न्यूमेरिकल हो जहां पर स्टेट कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो, आपने ये वाली अप्रोच यूज करनी है. हाउ टू कैलकुलेट the magnetic field due to straight current carrying conductor of finite length. बेटा फाइनाइट लेंथ का मतलब लेंथ डिफाइंड है, लेंथ बोलेगा इतनी है उतनी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है. समझ आ गई बात? क्लियर? पहला स्टेप, स्टेप 1, डिफाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर at the observation point. क्या करना है बेटा पहले स्टेप में डिफाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द स्टेट कंडक्टर एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. बात समझ आ गई? अब देखिए फिगर जो मैं स्केच कर रहा हूं वो फिगर साथ में स्केच करें क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ेगा. लेट अस सपोज से इट इज द स्टेट कंडक्टर से AB. बेटा दोनों एंड डिफाइन करने हैं, दोनों एंड डिफाइन करने हैं. Observation point is P. Let us suppose say I is the current flowing through the conductor. तो पहले स्टेप में सिर्फ ऑब्जर्वेशन पॉइंट को देखें, कंडक्टर को देखें, कंडक्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखें. समझ आ गई ये बात? अब स्टेप सेकंड में जॉइन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट join the observation point with the ends. या फिर एक काम करें, रुकिए, ज्वाइन मत करिए. इस वाले स्टेप में ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द कंडक्टर. क्या करना है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कंडक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. ये पहला फिगर था, अब दोबारा से फिगर होगा कॉपी. ठीक है, कंडक्टर दोनों एंड्स पता है, करंट पता है, P पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से कंडक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. और परपेंडिकुलर को लेट अस सपोज से हम स्मॉल a बोल रहे हैं. क्लियर हो गई बात? ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द कंडक्टर. Let PC is equals to small a. ये करने के बाद then join the observation point with the ends of the conductor. समझ आ गई बात? अब क्या करना है? पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कंडक्टर के एंड्स को ज्वाइन करना है. समझ आई बात? चलिए ज्वाइन कर लेते हैं.
ये थर्ड फिगर है, ये थर्ड फिगर है, उसी में मत करना। हो गया, इसको बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अब बेटा ज्वाइन करने के बाद ये वाले जो एंगल्स हैं परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन, ये जो एंगल्स हैं आपने इनको डिफाइन करना है, मतलब मार्क करना है। ऊपर वाले एंगल को φ1 बोलना, नीचे वाले एंगल को φ2 बोलना। क्लियर? देन जॉइन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट विद द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड डिफाइन angles φ1 and φ2। बात समझ आ गई? ये सेकंड स्टेप समझ आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट ये सेकंड स्टेप है, जल्दी से कॉपी कर लें। डन? अब क्या करना है? अब स्टेप थर्ड करना है। यूज B इक्वल्स टू से KI बाय A मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ φ1 प्लस से साइन ऑफ φ2। इस रिजल्ट को यूज करना है। K का वैल्यू एयर में μ0 बाय 4 पाई एयर में, और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷ यूनिट होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। K का वैल्यू हमेशा ये यूज करना है। बात समझ आ गई? यूजुअली स्टूडेंट्स एयर होगा या वैक्यूम होगा, अगर कोई मीडियम नहीं बोला तो एयर लेना है। पल्ले पड़ गई ये बात? अब बेटा ये जो φ1 और φ2 तुमने मार्क किए हैं, अब ध्यान से सुनो, ये φ1 φ2 की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। φ1 और φ2 कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे को लोअर क्लास की मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी, हायर क्लास की मैथ्स की जरूरत नहीं होगी। लोअर क्लास की जो मैथ्स यूज करनी है वो है 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड। समझ आ गई बात? कहीं ना कहीं ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होंगी बेटा, स्क्वायर के डायगोनल की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, या छोटी मैथ्स यूज होगी। क्लियर? अब बेटा तुम्हारा जो भी न्यूमेरिकल है, उसमें जो भी डाटा है, उसमें जो भी तुम्हारा एंगल बन रहा है ज्योमेट्रिक फिगर में, उसको φ1 इक्वल टू करके लिख लेना, φ2 इक्वल टू करके लिख लेना। समझ आ गई बात? बस ये छोटा सा काम करना है, बस इतनी मैथ्स यूज हो रही है। समझ आ गई बात? अब ये करने के बाद अब आपने क्या करना है कि अगर मल्टीपल कंडक्टिंग सिस्टम्स हैं तो आपने हर एक का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसके बाद में वेक्टर कैलकुलेशन करनी है। समझ आई बात? ओके, पल्ले पड़ी बात? स्टेट कंडक्टर का समझ आ गया? ये 3 स्टेप समझ आ गए? ठीक है, ओके ओके, इसमें ऐड कर ले। एंड डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल यूज करना है और साथ में ये जो कैलकुलेशन निकलेगी साथ में उसकी डायरेक्शन मेंशन करनी है। और समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर है? तो ये 3 स्टेप का लॉगरिथम है। हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट कंडक्टर whose length is finite and it is carrying some current। समझ आ गई? जल्दी से करें। हो गया? जल्दी से कॉपी करें। अब इसके बाद स्टेप 4th भी यहां पे दे रहा हूं, स्टेप 4th दे रहा हूं। अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जाए जिसके अंदर बहुत सारे कंडक्टिंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कंडक्टिंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे ट्रायंगुलर लूप हो जाए, स्क्वायर लूप हो जाए या रेक्टेंगुलर लूप हो जाए, तो आपने ये वाला जो कार्यक्रम है 3 स्टेप का, ये हर लेंथ सेगमेंट के लिए करना है।
मतलब हर पार्ट के लिए करना है, ठीक है। यहां तक 3 स्टेप तो हर एक के लिए करने हैं। अब आगे क्या करना है वो ध्यान से देखें। अगर सिर्फ एक ही कंडक्टर है जिसका लेंथ फाइनाइट है तो 3 स्टेप में काम हो जाएगा। ये स्टेप 4th देखें। If in the problem there are more than one straight conducting से कंडक्टर्स लिख लेते हैं, मोर देन वन स्टेट कंडक्टर्स। एग्जाम्पल दे रहा हूं, से ट्रायंगुलर लूप, से करंट कैरिंग लूप, ये एग्जाम्पल दिया है, और स्क्वायर करंट कैरिंग लूप। पल्ले पड़ी बात। तो क्या करना है, ध्यान से सुने। तो क्या करना है, तो देन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर each straight conductor, okay, and define its direction। तो आपने क्या करना है, आपने हर स्टेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है और साथ में उसका डायरेक्शन लिख देना है यूजिंग द राइट हैंड रूल। पल्ले पड़ गई बात। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज से पहला मान लेते हैं n कंडक्टिंग सिस्टम्स हैं, से वेक्टर B1 ऐसे लिखना है, कॉमा वेक्टर B2 ऐसे लिखना है, कॉमा डॉट 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 अप टू लास्ट वन, सभी के साथ करना है। ये सभी के साथ करने के बाद अब लास्ट स्टेप आएगा, स्टेप 5th। यहां पर कैलकुलेशंस होगी। डू द वेक्टर एडिशन। याद रखें वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर एडिशन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सिखाया था, वेक्टर एडिशन सिखाया था 11th में, वेक्टर एडिशन सिखाया था। गॉट इट? डू द वेक्टर एडिशन to calculate the total magnetic field ठीक है। That is say let us suppose vector B is the total magnetic field, so it will be vector B1 plus say vector B2 plus say dot 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 up to vector Bn। क्लियर? वेक्टर एडिशन करने के बाद में बेटा जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो वो ऐड होंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में वो सब्ट्रैक्ट होंगे, और अगर उनके बीच में कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल आएगा, कोई भी एंगल आएगा, तो स्वेन्स रूट वाला फॉर्मूला, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो यूज होगा। समझ आ गई बात? पहले बड़ी बात, वेक्टर कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिखेंगे एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। कॉपी करें तो इन टोटल स्टेप्स ये 5 स्टेप में काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही स्टेट कंडक्टर है तो पहले 3 स्टेप में काम हो जाएगा। अगर गिवन प्रॉब्लम में कोई ट्रायंगुलर लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, या कोई भी स्क्वायर लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, या कोई भी रेक्टेंगुलर लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो करेगा और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो स्टूडेंट्स ये 2 स्टेप्स भी करने पड़ेंगे। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, ट्रायंगुलर लूप का करके दिखा रहा हूं।
ठीक है, ध्यान से देख लेना, पहले इसको कॉपी कर लें। ध्यान से देखें, क्वेश्चन, द करंट कैरिंग लूप is in the shape of equilateral triangle. Carrying, या फिर एक काम करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड स्मॉल ए, ट्राइंगल का जो साइड है वो स्मॉल ए, ये ट्राइंगुलर कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, जिसका साइड स्मॉल ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके, एंड कैरीज द करंट आई। समझ आ गई बात? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at its center. ओके, क्वेश्चन कॉपी कर लें। मान लेते हैं ये ट्राइंगल लूप ABC, स्मॉल a is the side of the equilateral triangle, सेंटर इज से द पॉइंट O। तो बेटा तीन कंडक्टिंग सिस्टम हो गए। सबसे पहले काम करते हैं, एडवांस में तीनों कंडक्टिंग सिस्टम के जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उनकी डायरेक्शन देख लेते हैं, राइट हैंड रूल को यूज करके। ध्यान से देखिए, ये कंडक्टर दिखाई दे रहा है, AB, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड को ऐसे रखना है। कैसे रखना है? ऐसे रखना है, ऐसे अपने रजिस्टर के पेज के परपेंडिकुलर, ऐसे थंब सीधा, हाथ ऐसे रखा। अब बेटा जिस साइड पे थंब है, और सॉरी जिस साइड पे करंट है, हाथ को उस साइड रोटेट करें, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो थंब रखना है करंट के साथ, क्लियर? अब बेटा हाथ को फिर इस शेप में रखना है, फिंगर्स को पॉइंट करें। फिंगर्स कैसे जानी है? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर AB का कैसे हो गया? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गई बात? ओके, अब ध्यान से देखिए, इस वाले आर्म BC को देखिए। जब इस वाले आर्म BC को देखना है तो कैसे रखेंगे? ये आर्म BC दिखाई दे रहा है, हाथ को फिर से ऐसे रखा। अब क्या हाथ कैसे घुमाएंगे? टुवर्ड्स द करंट। करंट कैसे है? ऐसे है, दिस वे। फिंगर्स ऐसे अंदर की तरफ जा रही हैं। पल्ले पड़ी बात? सिर्फ फिंगर्स ऐसे मार के देखनी है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड द इनवर्ड डायरेक्शन। अब नीचे वाले का देखें, हाथ को ऐसे रखा, ठीक है। अब जिस साइड करंट है, हाथ को उस साइड घुमाना है कि थंब उसके साथ आ जाए। हाथ ऐसे घुमाया, फिंगर्स को पॉइंट करके देखा, कैसे अंदर की तरफ जा रही है फिंगर्स। तो इस वाले आर्म का भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड द इनवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गई बात? क्लियर? अब हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे सिमेट्री। तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड का कार्यक्रम कैलकुलेशन एक के साथ होगा, एक वायर के साथ होगा, वैसा सबके साथ होगा। तो एक काम करते हैं, सिर्फ एक का कैलकुलेट करते हैं, लॉगरिथम के साथ चलेंगे। ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, कंडक्टर AB हो गया, सिर्फ AB को देखें। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कंडक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये किया जी हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉप। परपेंडिकुलर को स्मॉल x से डिनोट करें, क्योंकि लेंथ को मैं ये बोल गया, वहां पे स्मॉल a मत लेना। पहला काम समझ आ गया? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कंडक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, मार्क कर लिया। अब एंड से
ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन कर लें, एंड से ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अब एंगल्स को मार्क करें, φ1 और φ2 को। तो भैया ये वाला जो एंगल हो गया ये φ1 हो गया, तो बजाय φ1 लिखने के उसकी वैल्यू लिख दें। अब देखिए ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो कोना होता है वहां पे 60 डिग्री का एंगल होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आधा, 30 डिग्री। तो ये 30 हो गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया था, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ये वाला एंगल बचेगा 60 डिग्री। समझ आ गई बात। तो सेम अप्रोच, ये वाला एंगल हो गया 30, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 60 हो गया, ये वाला 60 हो गया, तो φ1 और φ2 दोनों 60 आ गए, पल्ले पड़ गई बात। अब करते हैं कैलकुलेशन, ध्यान से देखें। इस वाले पॉइंट को डी मान लेते हैं, जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसको डी मान लेते हैं। क्लियर। अब बेटा बोलते हैं B1 is the magnetic field at O due to current flowing through AB। पल्ले पड़ी बात। अब बेटा B1 को सॉल्व करें, याद रखें वेक्टर का साइन नहीं लगाना है क्योंकि मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया K इंटू से I डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लिया हुआ है, x। ठीक है, फॉर्मूले में स्मॉल a था, यहां पर हमने x लिया हुआ है, इंटू साइन 60 प्लस साइन 60। और बात समझ आ गई। अब साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। तो B1 कितना आ गया, K इंटू I डिवाइडेड बाय x इंटू √3/2 प्लस √3/2। समझ आ गई बात। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया K इंटू से I डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड विद 2√3 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो B1 कितना आ गया, ये आ गया जी आपका K इंटू I डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड विद √3, इतना आ गया। और समझ आ गई बात। तो B1 का मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्वेश्चन में सिर्फ a गिवन है, x के बारे में तो बोला नहीं है, तो आपने x को एक ही टर्म्स में लेके आना है, क्योंकि डाटा में वेरिएबल a गिवन है, x नहीं गिवन है। पल्ले पड़ी बात। जल्दी से कॉपी करें इसको। डन। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें। तो B1 is written as K इंटू से I इंटू से √3 डिवाइडेड बाय x। अब ये x को एक ही टर्म से लेंगे, ये पूरी साइड स्मॉल a थी, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो गया a/2। ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा a/2, क्योंकि पूरी साइड a थी। तो x को a/2 के साथ रिलेट करें। इन ट्राइंगल ODB tan 60 is equals to perpendicular by base a/2 डिवाइडेड बाय x। तो x को क्या लिखेंगे आप, a/2 tan 60। x हो गया a/2 tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। पल्ले बड़ी बात। अब ये जो x का वैल्यू है ये यहां पे डालेंगे आप। This implies that this B1 is equals to K इंटू से I इंटू से √3 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू लगाए, इट इज a इंटू 2√3। बात समझ आ गई भाई। ओके, √3 इंटू √3 हो गया 3 इंटू 2 हो गया 6। तो B1 आ गया 6KI डिवाइडेड बाय स्मॉल a हो गया। ये हो गया मैग्नीट्यूड। ऑफ डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। समझ आ गई ये बात। और B1 समझ आ गया, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले कॉपी करें।
हो गया भाई, हो गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, इस वाले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1, डायरेक्शन हो गया अंदर की तरफ। इसी तरीके से यहां पे सिमेट्री दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये डिस्टेंस भी हमारा x हो जाएगा, ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 30 हो जाएगा, ये फिर 60 आएगा, ज्वाइन करेंगे ये फिर 60 आएगा। तो सिमेट्री दिखाई दे रही है, पल्ले पड़ी बात, सिमेट्री यहां पे भी दिखाई दे रही है। अब देखिए आर्म AB का जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B1 है अंदर की तरफ हो गया, आर्म BC का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B2 वो भी अंदर की तरफ हो गया, आर्म CA का मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B3 वो भी अंदर की तरफ हो गया, सिमेट्री भी है, तो तीनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा सेम। ओके, समझ आ गई ये बात? कॉपी कर लो इसको, कैलकुलेशन को जल्दी से मिटाना है मेरे को। डन। नेक्स्ट लाइन में लिख ले, बोले कि B1 इज इक्वल्स टू B2 इज इक्वल्स टू से B3, पल्ले पड़ी बात, बोले वेक्टर लगाएं तो डायरेक्शन की भी बात हो जाएगी, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो गया। क्लियर? अब बोले कि लेट वेक्टर B बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O। ठीक है, अब करनी है वेक्टर कैलकुलेशन। तीन वेक्टर है, तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपली ऐड कर देंगे। आप पहले लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन जरूर लिखें। वेक्टर B इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर B1, वेक्टर B2 एंड वेक्टर B3। पल्ले पड़ गई ये बात? ओके, ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। अब बेटा देखिए, अब देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है, तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे इसलिए तीनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाए। सो इट विल बी थ्राइस ऑफ, तीनों आइडेंटिकल है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, थ्राइस ऑफ B1, thus B is equals to thrice of K into I divided by, रुकिए, thrice of 6 KI divided by small a। पल्ले पड़ गई ये बात? हो गया? So this B is 18 times K into I divided by small a। अब बेटा इसकी भी डायरेक्शन लिखनी है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन सेम आएगा क्योंकि तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे। तो साथ में लिखे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। सिंपल। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये कैलकुलेशन हो गई। ध्यान से देख लें, कॉपी कर लें इसको जल्दी से। डन। और बेटा आपके पास में जो भी बुक्स हैं, आपको पता है मैं कौन सी बुक यूज करने के लिए बोलता हूं, ठीक है ना? तो टाइप ए देखें, वहां पे आपको लीनियर कंडक्टर दिखाई देंगे। ओके, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करें। याद रखें टाइम बहुत कम बचता जा रहा है, तो आज का काम आज ही कर लें। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।